ان کی ڈراؤنی صورت میرے سینے میں گھس گئی تھی۔ دل میں آیا کہ یہاں سے بے تحاشا بھاگ جاؤں اور کہیں اتھاہ گہرائیوں میں چھپ جاؤں یا اپنے سارے وجود کو اس بے جان جسم میں ڈال دوں۔ محل کا دوسرا کونا۔ نائب سلطان شہاب الدین خطوط پڑھنے میں مصروف ہیں۔ دربان داخل ہوتا ہے۔ دربان: نائب سلطان سلامت رہیں۔ مادر سلطان نائب سلطان سے ملاقات کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ شہاب الدین: مادر سلطان کون؟ دربان: سلطان کی والدہ حضور۔ شہاب الدین: انہیں باعزت اندر لے آؤ۔ دربان چلا جاتا ہے۔ شہاب الدین خطوں کو کنارے رکھ دیتا ہے۔ دربان کے ساتھ سوتیلی ماں داخل ہوتی ہے۔ شہاب الدین اٹھ کر بندگی کرتا ہے۔ شہاب الدین: بڑی بیگم صاحبہ کا سایہ ہم پر رہے، پیغام بھجواتی تو ہم خود خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ سوتیلی ماں: نہ جانے کیوں یکایک خوف محسوس ہونے لگا اور بے صبری بڑھتی گئی، اس لیے میں خود یہاں آ گئی۔ سلطان کی کوئی نئی خبر ملی ہے؟ شہاب الدین: نہیں بیگم صاحبہ، ہم خود حیران ہیں کہ اب تک کوئی خبر رساں کیوں نہیں آیا۔ 8 روز پہلے جو جنگ ہوئی تھی اور سلطان نے عین الملک کو جس میں ہرا دیا تھا، اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں ملی۔ صلح کیوں نہیں ہوئی اور صلح کرانے کے واسطے جو شیخ محترم ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا، اس کے متعلق کچھ خبر نہیں ملی۔ معاف کریں بیگم صاحبہ، میں بھی آپ کی طرح اندھیرے میں ہوں۔ سوتیلی ماں: معافی کس بات کی نائب سلطان؟ سلطان کی غیر حاضری میں بھی یہاں انتظام برقرار رہا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ شہاب الدین: میری کیا ہستی ہے بیگم صاحبہ، اگر وزیر اعظم محمد نجیب دوسرے دوراندیش سیاست داں کی مدد نہ ہوتی تو شاید۔ سوتیلی ماں: آپ اس کا نام نہ لیجیے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں اس سے انتہائی نفرت کرتی ہوں۔ غنیمت ہے کہ آپ کے آنے پر مجھے نجیب کے ساتھ گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ شہاب الدین: یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس قدر قابل اعتبار سمجھا۔ سوتیلی ماں: میرے اعتبار کی بات نہیں، موجودہ حالات میں آپ کو اپنے شہر سے بلا کر آپ کو حکومت کی ذمہ داری جو سپرد کی گئی ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان کے معتبرے میں آپ کا کیا درجہ ہے۔ سوتیلی ماں: میرے اعتبار کی بات نہیں، موجودہ حالات میں آپ کو اپنے شہر سے بلا کر آپ کو حکومت کی ذمہ داری جو سپرد کی گئی ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان کے معتبروں میں آپ کا کیا درجہ ہے، ورنہ دلی کیا امیر امراؤں سے خالی ہو گئی تھی، ان کی جگہ۔ دربان اندر آتا ہے۔ دربان: بیگم حضور اور نائب سلطان سلامت رہیں، رتن سنگھ تشریف لائے ہیں۔ شہاب الدین: فوراً بھیج دو۔ دربان جاتا ہے۔ سوتیلی ماں: رتن سنگھ کون ہے؟ شہاب الدین: میرا دوست، دوست سے بھی زیادہ میرا بھائی ہے، میرے والد کے ہاتھ اس کے ابا کا قتل ہوا تھا، لیکن رتن سنگھ داخل ہوتا ہے، لیکن آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ کیا خبر ہے رتن سنگھ؟ سلطان کہاں ہے؟ رتن سنگھ: ابھی دلی تشریف لائے ہیں، شاہی محل کے صدر مقام کی طرف گئے ہیں۔ سوتیلی ماں: کیا؟ تب تو مجھے وہاں جانا چاہیے۔ رتن سنگھ: گستاخی معاف ہو بیگم صاحبہ، سلطان کے ساتھ بندہ بھی موجود تھا، سلطان خود آپ سے اور نائب سلطان سے ملنے کے لیے ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں، میں یہی پیغام آپ کو دینے آیا تھا۔ سوتیلی ماں: لیکن بلا اطلاع دیے کیسے واپس آ گئے؟ اس قدر جلد بازی میں؟ ہم کس قدر بےتابی کے ساتھ سلطان کا انتظار کر رہے تھے، واپسی کی خبر مل جاتی تو سارا شہر استقبال کے لیے آراستہ کیا جاتا، ہر راستے ہر موڑ کو سجایا جاتا۔ آخر کیا بات تھی کہ سلطان نے اپنی واپسی کی خبر دینا بھی گوارا نہیں کیا؟ رتن سنگھ ذرا سی جھجک کے ساتھ: سلطان بے حد افسردہ ہیں بیگم صاحبہ، شیخ امام الدین کا انتقال ہو گیا۔ سوتیلی ماں: کیا شیخ امام الدین کا انتقال ہو گیا؟ رتن سنگھ: آپ کو خبر نہیں ہے بیگم صاحبہ، میدان جنگ میں شیخ محترم وفات پا گئے۔ شہاب الدین:
क्यों, क्या हुआ था? मैदानी जंग में वो क्यों गए थे? रतन सिंह, मैं नहीं जानता शहाबुद्दीन, उस वक्त मैं दूसरे मुकाम पर लड़ रहा था। शहाबुद्दीन, लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? रतन सिंह, हमारी तरफ से सिर्फ 600 सिपाही खेत रहे और दुश्मन की फौज का 3/4 हिस्सा साफ हो गया। शहाबुद्दीन, यानी हमारे जांबाजों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई होगी। सौतेली माँ उदास हो जाती है। उसी वक्त चौबदार की आवाज। चौबदार, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, खुदा बंद, खुदा तरस, सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। मोहम्मद नजीब बरनी दाखिल होते हैं। रतन सिंह बंदगी करता है। शहाबुद्दीन झुककर, सुल्तान का इस्तकबाल बुलंद हो, खुदा आपका हर कदम फतेह की जानिब ले जाए। मोहम्मद, बंदगी नहीं शहाबुद्दीन, गले मिलो। गले मिलते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने जो हुकूमत की बागडोर संभाली है उसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा एहसान मानते हैं। शहाबुद्दीन, मैं सुल्तान का खादिम हूँ खुदाबंद। सौतेली माँ, मोहम्मद, शेख मुअज्जम के मुताल्लिक ये कैसी खबर आई है? मोहम्मद, चेहरा एकदम फक पड़ जाता है। ये अभी दरियाफ्त करना था अम्मी। मुअज्जम की मौत का तसव्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती है। किस कदर बदशक्ल हो गई थी उसकी लाश, जैसे अपने आप से बोल रहा हो। शेख का बेजान जिस्म खेमे में लाया गया, सर से पैर तक तीरों से छिदा हुआ था। ज्यों ही मेरी नज़र उस पर गई, लम्हे भर के लिए मुझे एहसास हुआ कि गोया वे तमाम तीर मेरे जिस्म में बिंध गए हों। मुझे लगा मेरे सामने की लाश शेख की नहीं बल्कि खुद मेरी हो। उनकी डरावनी सूरत मेरे सीने में घुस गई थी। दिल में आया कि यहाँ से बेतहाशा भाग जाऊं और कहीं अथाह गहराइयों में छुप जाऊं या अपने सारे वजूद को उस बेजान जिस्म में डाल दूं। बरनी, हुजूर, शेख की मौत की वजह से आप क्यों गमगीन हैं? सौतेली माँ, उस गद्दार आइन उल मुल्क का क्या किया? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? मोहम्मद धीमी आवाज में, उसे मैंने आज़ाद कर दिया। सभी ताज्जुब से आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। सौतेली माँ, आज़ाद कर दिया? उसकी बेवफाई पर इनाम अता किया? उस बदकार को तो फौरन ख़त्म करवा देना चाहिए था। नजीब, बेगम साहिबा बजा फरमा रही हैं हुजूर। अवध में आइन उल मुल्क के बेशुमार हिमायती हैं। उसको आज़ाद करने का मतलब है बागियों के हाथ जलती मशाल थमा देना। बरनी, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है वज़ीर आज़म। सुल्तान जैसी हस्ती के लिए यही वाजिब था। अपनी इंसाफ पसंदी से सुल्तान ने ये साबित कर दिया कि दोस्ती सियासत से ज़्यादा अजीज है। नजीब बेरुखी से, फिर वही राग। मोहम्मद हंसता है शायद आप सबका ख्याल है कि मैंने आइन उल मुल्क को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया। आइन उल मुल्क को मैंने सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया बल्कि उसे अवध का राज भी वापस कर दिया। नजीब, अगर खुद तबाही को दावत देना चाहें तो हमारी क्या मजाल है हुजूर की कुछ कहें। सौतेली माँ, ऐसा कौन सा बड़ा काम उसने किया था जिसके लिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया? मोहम्मद कहानी सुनाने के रंग में, वो एक लंबी दास्तान है। कन्नौज जाने से पहले जिस शतरंजी मसले का हल हासिल किया था उसमें एक भूल रह गई थी। आइन उल मुल्क को जब मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उससे कहा, उल मुल्क, मैंने शतरंज में एक मुश्किल मसले का हल तलाश कर लिया है, देखोगे? वो राजी हो गया। मैंने शतरंज बिछाकर खेल बताया। वो मुतासिर होकर बोला, कमाल का हल पाया है सुल्तान, और पल भर खामोश रहा। फिर एकाएक बोल पड़ा, नहीं सुल्तान, इसमें एक भूल है। और यूं ही लम्हों में उसने वो भूल दिखा दी जिसका मुझे जरा भी इल्म नहीं था। तो हमने उनकी तमाम सियासी गलतियों को माफ कर दिया। बरनी, वाकई आप बुलंद हैं हुजूर। मोहम्मद, और तुम नेक दिल हो बरनी, आखिरकार नेक दिली की ही कद्र होती है। वजीर आजम के चेहरे की शिकनों को जरा गौर से देखो, लगता है कि हमने उल मुल्क को आज़ाद करके जो दरिया दिली दिखाई, गोया उस पर उसे जरा भी यकीन नहीं। शायद इसमें भी उसे सियासी चाल नजर आ रही हो। नजीब,
अपनी फितरत से मजबूर हूँ और इत्तेफाक से मेरा काम भी उसी किस्म का है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, अब हम रुखसत होते हैं। आज ही शहर भर में मुनादी करा दो कि शेख मोहतरम की शहादत बोझ से निजात हासिल करने के लिए सब लोग आज शाम को परवरदिगार से दुआएं मांगे। बरनी, उनकी शहादत का बोझ दिल्ली पर क्यों नाजिल होगा हुजूर? मोहम्मद, बरनी, शेख जैसे मर्द खुदा की मौत हो और हम लोग जिंदा रहें, यही गुनाह है। अब हम जाएंगे। शहाबुद्दीन भी चंद लम्हों के लिए फरागत महसूस करें। सिवाय शहाबुद्दीन और रतन सिंह के सब चले जाते हैं। शहाबुद्दीन, रतन, सुल्तान की इस संजीदगी की क्या वजह है? रतन सिंह, मैं बहुत थका हुआ हूँ शहाबुद्दीन, मैं सोना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन, इस कदर बेरुखी क्यों रतन? ये तो बताओ आखिर शेख मोहतरम पर क्या गुजरा था? रतन सिंह, तुम्हारे सुल्तान इस हद तक धोखेबाज हो सकते हैं ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक और कत्ल कराते हैं, दूसरी ओर उस कत्ल को शहादत का रंग देते हैं। शहाबुद्दीन, कत्ल किसका? क्या बक रहे हो? रतन सिंह, हाँ मैं बक रहा हूँ, मैं खपती हूँ ना। शहाबुद्दीन, गलत मत समझो, मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि बिला वजह सुल्तान की शिकायत करना सरासर नाजायज है। आखिर कोई वजह भी तो हो। हिंदुओं की तरक्की और भलाई के लिए सुल्तान ने क्या नहीं किया। नफरत के जोश में इस सच्चाई को भी नज़रअंदाज कर दोगे? रतन सिंह, सुल्तान की नेक नियति का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ, मगर उनकी ये नेक नियति भी बड़ी बेमुरव्वत है शहाबुद्दीन। उनकी इसी नेक नियति ने मुसलमानों की तरह हिंदुओं पर भी सितम ढाए हैं। दुआब के खौफनाक कहत के शिकारों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं। शहाबुद्दीन, कहत कुदरती बला है, उसके लिए सुल्तान के बुलंद ख्यालों पर शक करना हद दर्जे की नासमझी है। तुम्हारी ऐसी ही बातें मुझे बकवास लगती हैं। रतन सिंह, बकवास हैं या ना समझी ये तुम्हारा जाती नजरिया है, मगर सच्चाई ये है कि दोआब की जमीन की जरखेजी पर सुल्तान का जी ललचा गया और बिना सोचे समझे माल गुजारी पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी। अब खुदा की कुदरत नए साल बारिश ही नहीं हुई, मगर क्या इस कुदरती बला का इंतकाम रियाया से लेना चाहिए था? माल गुजारी न देने वालों पर जुल्म ढाना चाहिए था? उनको उनकी मौरूसी जमीन और जायदाद से बेदखल कर देना चाहिए था? तब कहत क्यों नहीं पड़ता? शहाबुद्दीन, मैं जानता हूँ कि वहाँ ज्यादती हुई है, मगर ये ज्यादतियाँ सुल्तान के हाकिमों की हैं। रतन सिंह, यानी तुम्हारे नुक्ताए नज़र में सुल्तान बेदाग हैं, किसी भी वारदात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो फिर शेख इमामुद्दीन के मौत का कौन जवाबदेह है? आइनुल मुल्क हैं, तुम्हारे वही हाकिम हैं। शहाबुद्दीन, आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते शेख मोहतरम के साथ क्या वारदात हुई? रतन सिंह, मैं डरता हूँ शहाबुद्दीन, तुम्हारे सुल्तान से नहीं बल्कि तुमसे। मुझे अंदेशा है कि शेख इमामुद्दीन की मौत की हकीकत सुनने के बाद भी तुम पर कोई असर ना हो। शहाबुद्दीन, ये सरासर ज्यादती है रतन, कि तुम यूं हमारी नीयत पर शक करो, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। रतन सिंह, तुम्हारे इस तरह की जज्बाती हरकतों से मैं बेजार हो जाता हूँ। मुझे तो इतना याद है कि इस हादसे में मेरी मौत नहीं हुई, बस यही गनीमत समझो। शहाबुद्दीन, अब कब तक राजदारी करते रहोगे रतन? जो हादसा हुआ है आखिर उसे बयान क्यों नहीं करते? रतन सिंह, अगर इतना इसरार है तो सुनो। सुल्तान ने तुम्हें तो दिल्ली बुला लिया और मैं कन्नौज जाकर उनसे मिला। अर्ज की कि मैं शहाबुद्दीन की तरफ से आया हूँ और जंग में सुल्तान की मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरी आमद पर सुल्तान को कोई खुशी नहीं और वो कुछ बातें मुझसे पोशीदा रखना चाहते हैं। अगली सुबह को ही मेरा शुबहा सही साबित हुआ। शहाबुद्दीन, क्यों, क्या हुआ? रतन सिंह, उस दिन शेख मोहतरम आइनुल मुल्क के साथ सुलह कराने के इरादे से अपने मुकाम से रवाना होने वाले थे। उनके साथ एक दस्ता भी जाने के लिए तैयार किया गया और इस दस्ते की असली कतार में रहने के लिए ही मुझे हुक्म दिया गया। मुझे एहसास था कि
अगर जंग छिड़ जाती है तो दस्ते की पहली कतार ही यकीनन खत्म होगी। लम्हे भर के लिए सन्नाटा। शहाबुद्दीन, तो फिर? रतन सिंह, शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार थे। बेचारे अपने को बाकायदा शाही सफ़ीर समझ रहे थे। उनके सर पर सुल्तान का इसरार से दिया हुआ इमामा सजा था। सुल्तान के ही हाथों इसरार से पहनाया हुआ शाही लिबास उनके जिस्म पर था और बिला शुबहा दूर से शेख मुअज़्ज़म बजाते खुद सुल्तान ही लगते थे। शहाबुद्दीन, उस वक्त सुल्तान अपने खेमे में थे। रतन सिंह, नहीं, वो 4000 की फौज लेकर नजदीक के पहाड़ के पीछे छुपे खड़े थे। शहाबुद्दीन, छुपे हुए? रतन सिंह, शेख इमामुद्दीन हमारे दोस्त के आगे आगे आइन उल मुल्क की फौज की तरफ बढ़े। उनका हाथी उल मुल्क की फौज से 500 गज के फासले पर खड़ा हुआ। शेख मोहतरम हाथी के हौदे पर से खड़े होकर आइन उल मुल्क को कुछ बताना चाहते थे कि एकाएक हमारी तरफ से किसी ने जंगी तुरही बजा दी। इसी को इशारा मानकर मेरे इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। बाज सिपाहियों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जंग छिड़ गई। लेकिन शहाबुद्दीन, जंगी कार्रवाइयां पहले हमने शुरू की थीं, उल मुल्क ने नहीं। शहाबुद्दीन, और सुल्तान? रतन सिंह, मैं कुछ समझ नहीं पाया। शेख की तरफ निगाह उठाई, मारे दहशत की उनका चेहरा बिगड़ चुका था। परेशान सूरत शेख चिल्लाने लगे, रुक जाओ, रुक जाओ। शहाबुद्दीन, या खुदा। रतन सिंह, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? मैं भी बेजिगरी से जूझता रहा। एकाएक सुल्तान को बचाओ, सुल्तान को बचाओ कहकर एक साथ कई चीखें सुनाई पड़ी। मैंने नजर उठाकर शेख साहब की जानिब देखा तो रुकता है कमरे की खामोशी चीखती हुई सी लगती है। रतन सिंह, शेख मुअज़्ज़म पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म को बींधे जा रही थी। तीरों से बचने की कोशिश में शेख ने अपना मुंह ढांप लिया। अब वो कांटों का एक लंबा बुत सा नजर आने लगे। फिर देखते देखते शेख मोहतरम का जिस्म हाथी के हौंदे पर से जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। हम घबरा कर तितर-बितर हो गए। बेतहाशा पीछे की तरफ भागने लगे। भागते ही रहे, भागते ही रहे। हम सब इंतहाई दहशत में थे। हमने अपने आप को घोड़ों की मर्जी पर छोड़ दिया। शहाबुद्दीन, और सुल्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? रतन सिंह, व्यंग्य से हंसकर धीमे से, हाँ हाँ, जरूर उठाया। सिपाहियों ने यही समझा कि खुद सुल्तान मारे गए। अंधे दुश्मन फतेह का नारा लगाते हमारे दस्ते का पीछा करते हुए मैदाने जंग की सरहद तक बढ़ आए। उस पहाड़ के पीछे सुल्तान बादस्तूर अपने 4000 सिपाहियों के साथ मुस्तैद खड़े थे। अब दुश्मनों की फौज तबाही के जाल में फंस गई। जंग खत्म होते होते दुश्मनों की 3/4 फौज का सफाया हो चुका था और हम फतेह याब हो गए। क्या अब भी सुल्तान को गुनहगार मानने से इनकार करोगे? अभी तुम्हें मेरे अल्फाज पर एतबार नहीं हुआ? थोड़ी देर खामोशी, फिर शहाबुद्दीन धीमी आवाज में, हाँ, सुल्तान शायद कसूरवार हैं, जरूर हैं, लेकिन ये कसूर महज सुल्तान का नहीं, इसमें अहले दिल्ली भी शरीक है। बड़ी उम्मीदें लेकर उस दिन शेख मोहतरम दिल्ली आए होंगे। उनको यकीन रहा होगा कि अहले दिल्ली उनको सुनेंगे, मगर किसी को भी उस जलसे में पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली। अगर चंद शख्स भी उस जलसे में मौजूद रहते तो ये खौफनाक हादसा कभी ना होता। रतन सिंह ठहाके के साथ, शाबाश, ये है दोस्ती का बेमिसाल नमूना। मगर तुम्हें मालूम भी है कि खुद अहले दिल्ली इस हादसे के मुताल्लिक क्या सोचते हैं? शहाबुद्दीन, मुझे क्यों कर मालूम हो? रतन सिंह, मालूम करने की कोशिश भी की है। शहाबुद्दीन, क्या मतलब? रतन सिंह, दिल्ली के बाज उमरा, ताजिर, इमाम वगैरह फिलहाल पोशीदा तौर पर कोई तजवीज़ करना चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि सुल्तान ने इस किस्म की फरेबकारी की हो। गए 2 सालों में उनसे ऐसी बेशुमार हरकतें सरजद होती रही हैं।
اس لیے سنا ہے کہ اب سلطان کی ان ناقابل برداشت حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی تدبیریں نکالی جائیں گی۔ شہاب الدین: تمہیں کیسے پتہ لگا؟ رتن سنگھ: دلی کی سیاسی چالوں کے لیے تم ابھی نوسکھیے ہو شہاب الدین۔ جس روز معلوم ہوا کہ سلطان نے جنگی دستے کی اگلی قطار میں بھجوا کر مجھے مروا ڈالنے کی سازش کی تھی، اسی روز سے کئی امیر امرا میرے پیچھے پڑے ہیں۔ آج ہی ابھی کچھ ہی لمحے پہلے جب میں اس طرف آ رہا تھا، سلطان کے بالکل 20 گز پیچھے ایک امیر نے اپنی خفیہ بیٹھک میں آنے کی دعوت دی تھی۔ ممکن ہو تو تمہیں بھی وہاں لے آنے کو کہا ہے، لیکن میں نے جواب میں کہا تھا کہ میں ضرور بیٹھک میں موجود رہوں گا، مگر شہاب الدین کے متعلق وعدہ نہیں کرتا۔ اگر وہ راضی ہوا تو ضرور لیتا جاؤں گا۔ بولو چلو گے؟ شہاب الدین: ضرور۔